आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी Ashtami, that is 8th day of the Shardiya Navaratri. Some of you will be doing Ashtami and many of you will be doing Navami, that is tomorrow. And then a festival of winning on goods of evil, that is Dashera or Vijay Dashmi, whatever you want to say, you can simply say, is about to come. So in advance, wish you all a very very happy Dashera as well, if in case we will not be able to deliver a show on that day. Now coming back to the point for what we are here, it was a double header yesterday. Two teams played fantastic cricket. The four teams were making effort to win the game, but it was two teams only who passed the title of yesterday's match. That was the first of them was Sri Lanka versus Netherlands. Everything was expected that Netherlands can do something unexpected as well, but it was not to be the case. First of all, Netherlands batted first, 91 for the loss of 6 wickets, and then good partnership of 130 for the 7th wicket. That is the highest partnership for the 7th wicket as far as the World Cup is concerned. For Netherlands, they managed to score 262, if I am correct. And in reply, Sri Lanka were down and out 52 for 2, and then some great partnership. Samara Ikrama is a batsman. Mr. Ramkishanji told earlier he's a very skillful batsman. He played a fantastic knock of 91 to guide Sri Lanka a good victory, first victory as far as Sri Lanka is concerned in the World Cup. So 2 points for them. And then it was a match between defending champion and chokers, South Africa versus England. The people would have expected England will come back the way they lost against Afghanistan, and then a crucial game it was for them, but nevertheless it was again a fantastic game for chokers, means South Africa. They batted first, scored 399 for the loss of 7 wickets. Klaasen played a fantastic knock, a classy knock, and not to forget Marco Jansen, a very fiery knock as well. See, both of the batsmen was looking in a prime form. Before that, I think RVD was the player who plays a fantastic knock of 85. Quinton de Kock, the man to be dismissed early, 4 runs scored by him on the very second delivery of the first one. He's dismissed, and then it was Africa's turnaround. England came out to bat 38 for 4, and then somehow managed to score 170 for the loss of 10 wickets. Not 10-9, it was because Topley, I think, was the batsman who could not come to bat because of an injury. So England is still having lots of difficulties in their own backyards, and I really hope they can try to match up something from here, but it will be very difficult for them to match the things that has just been lost or fallen in a different side. Hindsight, it was Mark Wood played a fantastic knock of 43, but it was too late. Yes, some fun was there. A record loss for England of 229 runs. Huge loss for them. And it looks like that their bag is about to be packed for back home from this World Cup, because 5 matches to be played and they have to win all 5 to remain in the contestants. So this was all as far as the summaries are concerned. In my words, now let's welcome Mr. Ramkishan ji on the show. Good morning. जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद फिर से हम लोग आए हैं। जी हाँ, कुछ तकनीकी समस्याएं हो जा रही हैं, जिनके कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, हम देर आए दुरुस्त आए और आप सभी के बीच पहुंच गए हैं। त्योहारों का मौसम है और लोग खरीदारियां भी खूब कर रहे हैं। तमाम सेल्स आई गई और अभी भी कुछ आ रही हैं। दशहरा जल्दी ही सेलिब्रेट किया जाएगा। ये
बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्योहार होता है, आप सभी जानते हैं। आज अष्टमी है, कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, तो जो लोग जो भी पूजते हैं उनको उसकी बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि माता ने सबके ऊपर अपना आशीर्वाद खूब बरसाया होगा, सबको बहुत खुशियां मिली होंगी। इस उम्मीद के साथ आगे जो आने वाले और नवरात्रि हैं उसमें आप लोग और उत्साह से और विश्वास से व्रत रखेंगे कि आपकी कई सारी मुरादें पूरी हुई होंगी इस बार। अक्सर ऐसा होता है, लोग मानते हैं चीजों को, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको आस्था जरूर रखनी चाहिए। धार्मिक विषय अलग है, बट फिर भी किसी एक शक्ति में आस्था जरूर रखनी चाहिए। खैर, ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं कई देशों में जो माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं, चाहे वो लिटन कुमार दास हो या फिर विक्रमजीत शायद है नीदरलैंड से, अगर मैं ठीक हूं तो। और अफ्रीका से केशव महाराज, तो ये कुछ लोग हैं ऐसे जो भारत के ना होने के बावजूद भी, सनातनी ना होने के बावजूद भी माँ दुर्गा में विश्वास रखते हैं। खैर, ये उनकी अपनी श्रद्धा है, और इससे आप भारत की डाइवर्सिटी, भारत के जो फेस्टिवल ऑफ लैंड्स भारत को कहते हैं, उसकी महत्वता को समझ सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। 2 title contestants, New Zealand have never been beaten by any team as far as this tournament is concerned. India is also on a driving seat, 4 out of 4. Hardik Pandya is concerned, he'll not play today's game, but very sure to play England's game in Lucknow. He had an injury, just trying to recover from that injury, but I really hope it will be a matchup for Shami or Thakur. I don't know who is gonna come in place of Hardik Pandya. It will be Mohammad Shami or Suryakumar Yadav or Ishan Kishan. Let's see what India is going to do. But now let's discuss the 2 matches that has been played yesterday, and that was a double header. Sri Lanka, Netherlands. मतलब मैच अच्छा था यार, मतलब 191 for the loss of 6 wickets and then a good partnership. I don't believe कि मतलब 6 विकेट गिरने के बाद नीदरलैंड्स यहां तक पहुंचेगा। द वे दे प्लेड, अगर वो 2 बॉल पहले आउट नहीं हो तो शायद 270 का आंकड़ा पार कर लेते वो लोग। तो 262 वाज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टारगेट टू बी चेज डाउन, और वो भी तब जब श्रीलंका के 60-65 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। वहां से एक अच्छी पार्टनरशिप और मैच को बना ले गई। कहाँ लगा आपको नीदरलैंड्स के साथ अनुभव की कमी, या फिर बॉलिंग शायद उस तरह से हुई नहीं जो एक्सपेक्टेड था उनसे, या जिसकी वो उम्मीद कर रहे होंगे? हाँ, निश्चित तौर से वो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं अनुभव की कमी लगी, और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अदरवाइज जब 91 पे 6 हो जाए तो आप कोई नहीं सोच रहा होगा आप 250 बनाएंगे, लेकिन वहां से बनाया एक प्लेयर ने, वहां 70 प्लस बनाए। तो मुझे लगता है अनुभव की कमी रही, लेकिन हाँ, नीदरलैंड ने जिस तरह से अपने खेल को दिखाया है इस विश्व कप में, कम से कम मैं तो नीदरलैंड से संतुष्ट हूँ। हाँ, नहीं, मैं खुद भी बड़ा प्रभावित लगा, और मुझे बड़ा प्रभावित किया नीदरलैंड से। द वे दे प्लेड अगेंस्ट द टीम लाइक साउथ अफ्रीका, दे बीट इट comprehensively by 38 runs was a margin, I think, but again 38 runs is a great margin as far as the team Netherlands is concerned. तो वो एक अच्छी चीज। और श्रीलंका हार्ड अर्न 2 points, बड़ा आसान नहीं था उनके लिए, बीच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। ये खुद समीरा इकरामा उनका नाम है अगर मैं ठीक हूं तो उन्होंने खुद माना इस चीज को कि जब हम खेल रहे थे बीच में बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, कुछ भी वो दे नहीं रहे थे। पिच उतना आसान था नहीं बैटिंग के लिए, फिर भी उसको आसान बनाने की कोशिश में लगे रहे और अंत में मैच को जीत लिया। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था, लेकिन क्योंकि नीदरलैंड की टीम सामने थी, अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम होती इतने टारगेट तो श्रीलंका शायद मुश्किल में पड़ सकती थी। बट वही अनुभव की कमी, और श्रीलंका को 2 महत्वपूर्ण अंक मिले जरूर हैं, लेकिन क्या ये उनकी आगे की प्रोग्रेस के लिए ठीक है या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी अभी है नहीं। इंग्लैंड की भी स्थिति वही है, अब तक उन्होंने अपने 4 मैचेस में 1 मैच केवल जीते हैं और 3 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर वो 5 मैच और जीते तो शायद थोड़े चांसेस उनके बने, लेकिन वो असंभव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के जो 5 मैचेस बचे हैं ना, उसमें से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश
ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। अगर मैं ठीक हूं तो 4 एशियाई टीमों से इंग्लैंड को भिड़ना है। जी हाँ। ऐसी स्थिति में खैर पहले श्रीलंका के बारे में लगता है आपको कहीं कोई उम्मीद है टॉप 4 में आने की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, बाकी श्रीलंका के साथ पॉजिटिव्स कुछ जरूर जुड़ेंगे उस जीत के बाद। वो जो नंबर 3-4 पे बैटिंग करने आते हैं प्लेयर, आपने उनकी बड़ी तारीफ की थी, उनके अंदर स्किल्स दिखी मुझे कल। अच्छा, हाँ बोलिए, कुछ कहेंगे आप? नहीं, उनके 4 की बात ही नहीं है, 3 और 4 उनके बड़े जबरदस्त है। 3 पे मेंडिस और 4 पे समीरा विक्रमा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और किसी न किसी मैच में उनके 5 इनिंग चलता। श्रीलंका भी अच्छा खेलेंगे जरूर, लेकिन हाँ, थोड़ा ऐसा उनके साथ फॉर्म का अप डाउन है। बट 3 और 4 तो उनके बड़े गजब के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशिया में आके एशियाई टीमों को हराना कितना मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए? मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा, और इसका उदाहरण अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि अफगानिस्तान भले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के बराबर की टीम बेशक ना हो, मगर उसने दिखा दिया है कि अफगानिस्तान एक एशियन कंट्री है। एक एशियन कंट्री को एशिया में हराना कितना मुश्किल है, ये इंग्लैंड से अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी शिकस्त का सामना कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये भी 5 मैचेस हैं शायद, और 4 मैच उन्होंने 2 जीते और 2 गंवाए हैं। तो 5 मैचेस उनके भी बड़ी मजबूत टीमों के साथ हैं भी, यानी यही इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान से उनका मैच हो गया, श्रीलंका से मैच हो गया, बांग्लादेश होगी उनके सामने, भारत से मैच हो गया, न्यूजीलैंड होगी। तो ऑस्ट्रेलिया का भी रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुछ अपसेट तो करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सक्षम है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इतनी आसान डगर नहीं होने वाली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि जो नीचे की टीमें वो मैचेस हारती रहें, और ऊपर वाली जो टीमें हैं यानी भारत और न्यूजीलैंड, वो अपने अपने मैचेस जीतती रहे। और ऐसी स्थिति में भी कोई एक टीम तो हारेगी ही। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला आज धर्मशाला में, खूबसूरत मैदान, पहाड़ों से घिरा हुआ मैदान है, बर्फ वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, और वहां मुझे लगता है एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच में। दोनों के पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं। क्या विलियमसन खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन विलियमसन के ना होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की है, कप्तानी बहुत बढ़िया रही है। कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया कि कहीं लैक्स कर रहे हो, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। एक मैच में विलियमसन को खिलाया था, और विलियमसन ने क्या खूब खेला था। जी हाँ, निश्चित तौर से वो पारी बहुत अच्छी थी, और मैच जिताऊ पारी थी वो विलियमसन की। बिल्कुल। तो ये तो रही पूरे विश्व कप के समीकरण की बात कि कौन सी टीम कहां है। फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के 2 स्थान बहुत हद तक पक्के और सिक्योर नजर आ रहे हैं। बाकी तीसरी टीम, जैसा कल आप ऑफलाइन कह रहे थे, शायद साउथ अफ्रीका आपको नजर आती है। अगर साउथ अफ्रीका को मान लिया जाए, ऐसी स्थिति में बचती है एक टीम, और उस एक टीम के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी वर्ल्ड कप के लीग मैचेस के अंत तक। यानी जब तक 9 मैचेस सबके हो ना जाए, तब तक शायद कुछ कहना मुश्किल। लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तान उस रेस में कहीं, और या ऑस्ट्रेलिया उस रेस में ज्यादा बेहतर टीम नजर आ रही है। दोनों टीमों के अलावा कोई तीसरी टीम नजर आती नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, और यदि कमबैक कर पाए तो लंका भी हो सकती है। तो नहीं, इंग्लैंड को तो मैं मान के चल नहीं रहा हूँ, क्योंकि 5 में से 5 मैच तो जीत नहीं पाएगा। फिर भी खैर दिक्कतें तो नहीं है, तो दोनों के साथ दिक्कतें हैं। तो क्योंकि यदि आपने बताया अपने हिसाब से, क्योंकि 4 में से 2 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भी, और ऑस्ट्रेलिया को भी 5 में से 4 मैच जीत रहे हैं। आपके ही यदि हम समीकरण के आधार पे चले तो 5 में से 4 ऑस्ट्रेलिया को जीत रहे हैं, 5 में से 5 इंग्लैंड को जीत रहे हैं उस हिसाब से। क्योंकि देखिए, यहाँ आंकड़ा फंसेगा जब सारे मैचेस हो जाएंगे। मुझे लगता है कुछ 5 पे भी क्वालिफाई करेंगी टीमें,
जरूरी नहीं है 6 होना ही चाहिए। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रन रेट भी मैटर करेगा। उस कंडीशन में मुझे लगता है इंग्लैंड का थोड़ा मुश्किल चांस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बराबर स्पर्धा में है, और ये भी हो सकता है कहीं श्रीलंका भी स्पर्धा में ना आ जाए जी। लेकिन ये दो तीन टीमें लगभग तय नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत। जी हाँ, वो तो कंफर्म है। खैर, तो ये रही वर्ल्ड कप के समीकरण की बातचीत। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आज के मैच पर आता हूँ। भारत बनाम न्यूजीलैंड, 2 अनबीटन टीमें, दोनों को अब तक किसी ने हराया नहीं है और दोनों ने केवल सबको हराया ही है। आज किसका पलड़ा भारी होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 20 सालों की इतिहास अगर मैं आपको बता दूं तो जितने मैचेस भी न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुए सब न्यूजीलैंड ने जीते हैं, ये आपको शायद मालूम होगा। ऐसी स्थिति में दर्शक ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भारत जीत के उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। आपको लगता है आज ऐसा हो सकता है? हार्दिक पांड्या मिस करेंगे आज का गेम? निश्चित तौर से मैं पिछले 20 सालों के इतिहास की तरफ न जाके फिर भी मैं भारत की तरफ ही रहूंगा, और मुझे लगता है भारत आज अपना सारा हिसाब बराबर करेगा, क्योंकि भारतीय टीम अच्छे लय में है। और यदि भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती, क्योंकि इस विश्व कप में भारत ने अभी तक कोई भी मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए नहीं जीता है। बाकी रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है, विराट कोहली का 100 आ चुका है, गिल कभी भी अपने रंग में आ सकते हैं क्योंकि क्वालिटी प्लेयर हैं, और श्रेयस अय्यर भी कमोवेश टच में नजर आ रहे हैं। टीम ठीक नजर आ रही है, लेकिन हाँ, असली मुकाबला होगा उनके गेंदबाजों की तरफ से, उनके पेसर की तरफ से और हमारे पेसर की तरफ से। Matt Henry, Trent Bolt, the way they are bowling right now in tandem, it is absolutely brilliant to watch. Both the bowler are seaming, swinging, everything is happening, and Dharamshala is a kind of wicket where ball will swing. If in case you have ability to seam or swing, it definitely will. In that case, how crucial the toss is going to be? हाँ, निश्चित तौर से टॉस बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इधर से मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट, और मिचेल सेंटर को ना भूलें आप, ही इज अ वेरी क्वालिटी बॉलर। नहीं, मैं पेस पे जा रहा हूँ अभी। और ओके फाइन, इफ यू टॉक अबाउट स्पिन देन मिचेल सेंटर विल कम इनटू प्ले। जी हाँ, और उधर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। मैं शार्दुल की जगह शामी को देखना चाहता हूँ आज के मैच पे। कम से कम थोड़ी सीमिंग कंडीशन होंगी, पिच हार्ड होगी, और यहाँ पे अगर मोहम्मद शामी यानी बुमराह अंत में आके गेंदबाजी करें और शामी जो है मतलब बीच में बुमराह करें, शामी और सिराज ओपन करें, शायद कहानी कुछ और। हार्दिक पांड्या की जगह किसको देखते हैं आप? मुझे लगता है भारत एक बैटर के साथ जाएगा। मुझे लगता है सूर्य कुमार के साथ जाना ज्यादा भारत के लिए दुखद होगा। I am also in a favor of that. India should go with Surya Kumar Yadav, not Ishan Kishan. Yes, he's a quality batsman, not to forget. He played some qualitable inning as far as Ishan Kishan is concerned. But again, Surya Kumar Yadav, the batsman of the era, the way he is playing right now as far as the T20 cricket is concerned, he is on top right now, if I'm not wrong. In T20 rankings, in one day is bit down actually. But again, it can be very dangerous if it is his day. वो एक कहावत कही जाती है सूर्य कुमार के लिए, या फिर ऐसे जो भी बैटर्स होते हैं जो बड़े फेयरलेस होते हैं, इफ इट इज इन आर्क इट विल बी आउट ऑफ पार्क। तो वो नजर आता है जब सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। अगर उनकी आंख में गेंद है तो वो बाहर जाएगी जरूर। तो वो भारत के लिए कई बार दुखद भी होता है, सुखद भी ज्यादातर होता है। दुखद भी कई बार हो जाता है, वो अच्छे शॉट्स खेलने के चक्कर में टेढ़े मेढ़े इन्वेंशन करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं, वो अलग मामला है। तो न्यूजीलैंड की तरफ से बैट्समैन में सब अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। भारत के लिए की क्या होगा अगर कहीं न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है? भारत को कम से कम पावर प्ले में 2 विकेट लेने पड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है वहां से 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं। एक डेवोन कॉनवे भारत में खेलते रहे हैं
और उनके रिकॉर्ड भारत में शानदार हैं, उनसे हमें बचना होगा। और एक टॉम लेथम उनके कप्तान, यदि विलियमसन नहीं खेलते हैं तो लेथम, और विलियमसन खेलते हैं तो विलियमसन और लेथम, हमें इनसे थोड़ा बचने की आवश्यकता है। बाकी इंडिया को पूरा होमवर्क करके आना चाहिए और हर खिलाड़ी के लिए एक नई योजना होनी चाहिए कि किस खिलाड़ी से हमें किस तरह से पार पाना है। अब अगर बात स्पिनर की कर ली जाए कंपैरेटिवली, मिचेल सेंटनर, रविंद्र जडेजा, आप इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं या फिर कुलदीप यादव के साथ कोई और कंपैरिजन नजर आता है आपको न्यूजीलैंड में? मुझे लगता है सेंटनर उनके प्राइम स्पिनर है और हमारे पास कुलदीप है, और उनके पास सचिन रविंद्रा है, हमारे पास जडेजा है। अच्छा, कुछ आप यूं देखते हैं कंपैरिजन को। कल राहुल द्रविड़ का एक बयान छपा अब पिच के बारे में, आपकी क्या राय है? मतलब चेन्नई और अहमदाबाद की पिचेस को आईसीसी ने रेटिंग्स दी है, एवरेज रेटिंग दी है, मतलब हालांकि डीमेरिट्स पॉइंट नहीं मिलेंगे बट एवरेज रेटिंग दी है। डोंट यू थिंक ये फेयर नहीं है? क्योंकि राहुल द्रविड़ का भी ये मानना है कि अगर आप इस आधार पे पिच को रेट करेंगे कि जी वहां 350 रन नहीं बने या छक्के चौके नहीं ज्यादा लगे तो उसको रेटिंग खराब दे दी जाए। ऐसी स्थिति में भारत का वो अफ्रीका के विरुद्ध वर्ल्ड कप T20 का मैच कौन भूल सकता है पर्थ में, जहां भारत 130-32 रन बना पाया था और अगली टीम ने उसे 19.4 ओवर में चेस की थी क्या, और आपने उस पिच को गुड रेटिंग में दे दिया। तो एवरेज रेटिंग उन पिचेस को जहां पे आपको सबकी स्किल्स देखने को मिली, स्पिन की भी स्किल्स देखने को मिली, बैटर की स्किल्स देखने को मिली, आप उस पिच को एवरेज कह रहे हैं, और जहां एक तरफा बोलबाला रहा बॉलर्स का उस पिच को आप गुड रेटिंग्स दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, निश्चित तौर से ये एक तरीके से इनफेयर है और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भारत को अपने स्किल पे कामयाब रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आईसीसी का जो मन हो करे, लेकिन हाँ, इट इज अनफेयर। मतलब वो ये कह रहे हैं, राहुल द्रविड़ का बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, उन्होंने कहा अगर आप बॉलर के लिए कुछ बनाना नहीं चाहते तो फिर बॉलर बेचारे आए क्यों, सीधा बैटर का गेम रख लो ना, बैटर कोई बॉलर बना दो, अपना रन पड़ते रहेंगे, पार्ट टाइम जो बॉलिंग करेंगे छक्के तो पड़ेंगे ही ना। तो बड़ी ठीक बात लगी मुझे उनकी कि यार आप ऐसे, हालांकि राहुल द्रविड़ ने बड़े रिस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री किया कि उन्होंने कुछ उल्टे पलटे कमेंट्स नहीं किए। ये भारतीयों की पहचान है। देखिए, अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता ना तो ऐसे बयान देता, वो फंस जाता अपने आप में। राहुल द्रविड़ ने बयान हिंदी में देना शुरू किया, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं अंग्रेजी में आता हूँ, अदरवाइज लोग कुछ और समझ लेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। सो ही हैज गिवन हिज कंप्लीट इंटरव्यू इन इंग्लिश, और बड़ी जेन्युइन वैलिड बात कही उन्होंने कि एक पिच को सिर्फ इसलिए अच्छा या बुरा नहीं कह देना चाहिए कि वहां पे स्किल, अब अगर स्पिन ट्रैक नहीं होगा तो आप फिर जडेजा, सेंटनर, कुलदीप यादव या फिर एडम जैम्पा, इनकी एबिलिटी देखेंगे कैसे? अगर मुश्किल बैटिंग हालात नहीं होंगे, विलियमसन, राहुल द्रविड़ खुद भी एक बड़े टेक्निकली अच्छे प्लेयर थे, नॉट टू फॉरगेट, विराट कोहली, इन सबके जो सिंगल डबल की स्किल्स है वो देखेंगे कैसे आप? हर बैट्समैन चौके छक्के हमेशा तो नहीं मारता रहेगा, और वो बैट्समैन ही क्या जो अच्छी कंडीशन में बैटिंग करे, या बॉलर ही क्या जो अच्छी कंडीशन में बॉलिंग करे। उसके विपरीत हालात होने चाहिए, तब वो अगर बॉलिंग बैटिंग अच्छी करे तब भी उसको अच्छा बैट्समैन या बॉलर मानना चाहिए। ये राहुल द्रविड़ का अपना मानना था। हाँ, निश्चित तौर से इसमें उन्होंने बिल्कुल सही बातें कही, जेन्युइन बातें कही हैं, और उन्होंने अपनी बात को रखने का जो तरीका चुना वो उससे भी बेहतर था। हाँ, मजा आया मुझे, मतलब कि कोई उल्टे पलटे शब्द नहीं, एकदम एग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं, बड़े आराम से सहजता से अपनी बात रखी, और शायद आईसीसी इस पर सोचे भी, क्योंकि अब राहुल द्रविड़ सरीखा प्लेयर अगर इस तरह की बातें करे, मुझे लगता है आईसीसी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ बोलेंगे, या कोई भी महान प्लेयर रहा हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो फिर इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए अगर वो प्लेयर्स कुछ बोले, कम से कम उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, निश्चित तौर से, बिल्कुल। और तो खास कुछ है नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में हमने बातचीत कर ली, आप कुछ कहना चाहें? एक बात है जो आज मैच जो खेला जाएगा धर्मशाला में, उससे जुड़ी हुई, आज बड़ी ही राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगने वाला है धर्मशाला में। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने लड़के और बहू समेत मैच देखने धर्मशाला जाएंगे। वहीं पे जो उनके मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो भी अपनी टीम के साथ
मैच देखने धर्मशाला पहुंचे। ये सब सिर्फ एक दिखावा है, शो ऑफ है और कुछ नहीं। मैचेस हर जगह होते हैं और नेता वगैरह मैच देखने बहुत कम ही जाते हैं। वो मतलब इसलिए जाते हैं कई बार कि जनता को लगे कि हाँ ये भी धरती से जुड़े हुए हैं, या फिर तमाम चीजें होती हैं। तो खैर ये एक अपडेट था जरा मुझे आपको दे दिया। हालांकि वही है, राजनीति और खेल दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अब आजकल बिना राजनीति के कुछ होता नहीं है, तो कुछ भी अछूता है नहीं, राजनीति हो या कोई भी हो। मुझे लगता है काफी चर्चा हो चुकी है, तो अब इस अंक में बस इतना ही। दीजिए हम दोनों को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, एंजॉय कीजिए भारत और न्यूजीलैंड के मैच को, और दीजिए हम दोनों को विदा। नमस्कार, गुड बाय।